नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। लेट अस रिकॉल द रिजल्ट। इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is known, then Laplace transform of its derivative is s into f of s minus small function at 0, given function at 0. Okay, so this is the rule. इसका और extension Laplace transform of f double dash t is equal to s square Laplace transform minus s function at 0 minus first derivative of function at 0 and so on. We need this result for our next article. Next article is Laplace transform of integral. The theorem says if Laplace transform of ft is known, say capital F of s, then Laplace transform of integral fu du from 0 से t is equal to Laplace transform upon s. So proof. Now see first, this integral is with respect to u, but the limits are 0 से t. So after evaluating, this will be function of t. So we denote this integral by, say, g of t is equal to integral 0 से t fu du. Say number 1. Then if we put t equal to 0, then lower limit and upper limit are same, 0 से 0 f of u du. So answer will be 0. And since this is function of t, right hand side is function of t, we can differentiate both sides with respect to t. So we can get g dash t is equal to d dt of integral 0 to t fu du. Now this derivative and integral cancels each other and we will get function of t only. Note this point. Note this point. Derivative and integration cancels each other. We will get function of t. Treating this as a function of t. Okay. Now by the derivative of Laplace transform, we have Laplace transform of g dash t. g dash t का Laplace transform देखते हैं, तो रूल अप्लाई करते हैं पहले यहाँ पर s Laplace transform of function gt minus g at 0. g dash t is f of t. This implies L of f of t equal to s अपनी जगह L of g of t को ये इंटीग्रल से रिप्लेस कर दो, 0 से t f of u du minus g of 0 is 0. ये तो टर्म वैनिश हो गई. Laplace transform will be ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो therefore Laplace transform of integral 0 से t fu du is equal to L of ft is nothing but capital F of s. It is known Laplace transform upon s. Hence prove the result. Laplace transform of integral 0 to t fu du is known Laplace transform capital F of s upon s. Yes, you can take screenshot. So next article is Laplace transform of t power n into f of t. Laplace transform of t power n into f of t. Theorem is
if Laplace transform of some function is given or known, then Laplace transform of t power n f of t is equal to minus 1 power n nth derivative of f of s, where n varying from, where n is natural number. तो किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, उसमें t पावर n मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट इज लाइक दिस, ये हमको प्रूव करना है. So we use principle of mathematical induction to prove this result. We use mathematical induction. So denote Pn as Laplace transform of t power n f of t is equal to minus 1 power n nth derivative of f of s. What is f of s? Capital F of s is Laplace transform of ft. This is known Laplace transform. Okay. So let us see, for n equal to 1 what is the result. So by definition we know that Laplace transform of f of s is equal to integral 0 to infinity e power minus st ft dt. ओके, तो अभी हमको n इक्वल टू 1 के लिए पहले रिजल्ट वेरीफाई करना है, तो वी राइट f ऑफ s बाय डेफिनेशन. अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, बिकॉज़ दिस इज फंक्शन ऑफ s. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s, तो इधर तो हो गया f डैश s, इधर हो जाएगा ds ऑफ इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस st ft dt. Now see, this is the improper integral, limits are 0 से infinity, variable है t. So this is integral with respect to t and we are differentiating with respect to s. तो ऐसे समय ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर चले जाएगा, and that rule is called as rule of differentiation under integral sign, Libret's rule of differentiation. So it becomes 0 से infinity del s of e power minus st ft dt by Leibniz rule of differentiation, by Leibniz rule of differentiation under integral sign. Leibniz rule of differentiation, ये पूरा वर्ड होगा under integral sign. It is equal to, this is equal to इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव e पावर माइनस st, s से डिफरेंशिएट कर रहे तो इनटू माइनस t ft, कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा और ये dt, माइनस साइन बाहर कर दें, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस st t इनटू ft dt. ओके, इसको भी ऐसा लिखने के बजाय ऐसे रहने देते, ddx रहने देते, दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s. तब ये जो माइनस साइन है मल्टीप्लाई कर देते माइनस साइन से, तो माइनस साइन इधर आ गया, -1 इंटू ddx ऑफ f ऑफ s इक्वल टू, अब यहाँ जो बच गया तो बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट l ऑफ tft, ये फंक्शन है
से इंफिनिटी है, e पावर माइनस st. तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट L of t ft. Means this result is true when n is equal to 1. See, n is 1, minus 1 का power 1 और first order derivative. So this shows that result is true for n equal to 1. यानी p1 is true. Okay? Yes. Okay. So इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखें, therefore the result is true for, हम यहाँ लिख देते हैं, that is the result is true for n equal to 1. Means p1 is true. P1 is true. Okay. P1 is true. Now we suppose that Pn is true for sum n equal to m. That is, suppose that Pm is true. Means what? Means जहां जहां n है वहां वहां m सपोज कर लो. Means -1 का पावर m, mth derivative of f of s is equal to Laplace transform of t power m ft dt, t power m ft, ऐसा हमने सपोज किया. What it means? इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस st t पावर m ft dt बाय डेफिनेशन. ये हमने सपोज किया हुआ है. वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो पहला स्टेप प्रूव किया, p1 इज ट्रू. नाउ वी आर अज्यूमिंग रिजल्ट इज ट्रू फॉर सम n इक्वल टू m, दैट इज pm इज ट्रू. अब इसकी हेल्प से इसके सक्सेसिव नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू है ये हमको प्रूव करना है. मतलब m+1 के लिए रिजल्ट ट्रू है ऐसा प्रूव करना है. तो यहाँ पर m+1 चाहते हैं, मतलब m+1 ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहते हैं. ऑलरेडी m ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते विद रिस्पेक्ट टू s. So after this, differentiating with respect to s, differentiating with respect to s, तो यहाँ पर कांस्टेंट -1 रहने देते हैं. एक और डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये बनेगा dm+1 by dsm+1 m का डेरिवेटिव. यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो जो डेरिवेटिव ऑर्डिनरी वो अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा. अभी जो हमने ऊपर रूल यूज किया था, लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते उसको. इट बिकम्स 0 से इंफिनिटी del del s ऑफ e पावर माइनस st, और बाकी की टर्म तो s के रेफरेंस में फिक्स होगी, t पावर m ft dt. कहाँ से आएंगे? बाय लीबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. पूरा लिखेंगे वो, राइट. अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव कर दो 0 से इंफिनिटी, इसका डेरिवेटिव e पावर माइनस st, s से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस t कांस्टेंट t पावर m ft dt, माइनस साइन बाहर, 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस st t पावर m+1 f of t dt. दिस इज नथिंग बट माइनस साइन के साथ है t पावर m+1 ft बाय डेफिनेशन.
बाय डेफिनेशन, और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1 पावर m प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ fs इक्वल टू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर m प्लस 1 ft। जब हमने शुरू किया था pm इज ट्रू से, मतलब pm इज द रिजल्ट, एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट कैसा दिख रहा है, m प्लस 1 के लिए ट्रू होते दिख रहा है, m प्लस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू होते दिख रहे हैं, मतलब pm दिस इज द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। आया कहां से था, pm की हेल्प से आया था, तो दैट इज pm इम्प्लाई pm प्लस 1। तो मैथमेटिकल डिडक्शन की जो दो रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमल एलिमेंट के लिए रिजल्ट इज ट्रू, दैट इज p1 इज ट्रू, वो हमने ऊपर देखा, एंड सेकंड इज pm इम्प्लाई pm प्लस 1। तो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन क्या मिल गया, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n ft इज इक्वल टू, ठीक से कर लिख लेते हैं लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू -1 पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ नॉन लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉर n belongs to natural number। This proves the result। Okay, yes, complete this one। कई बार ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के साथ में प्रॉब्लम अटैच होता है कि हैंस फाइंड या हैंस शो दैट। देखते हैं एग्जांपल। प्रूव दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t into sin at is equal to 2as upon s square plus a square using above result। Hence show that ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसको प्रूव किया है। Hence find L of t sin at, यानी थ्योरेटिकल पार्ट के साथ एग्जांपल। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ ये देखना होगा कि एक फंक्शन ft जिसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म पता हो, तो t के साथ में sin at है, तो इसको हम f of t सपोज कर लेते हैं। तो लेट f of t इज इक्वल टू sin at, तो देयरफॉर L of f of t इज इक्वल टू L of sin at, ये पता है हमको, दिस इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर व्हिच इज f of s, दिस इज नो। थ्योरम रिकॉल करते हैं। वी नो दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n f of t इज इक्वल टू -1 का पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f of s, n इज नेचुरल नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा। तो अप्लाई दिस रूल फॉर t into f of t, therefore लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t into f of t, हमको सिंगल पावर दिया है t का, इट इज इक्वल टू -1 का पावर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव n की जगह 1 ऑफ f of s, ये रूल बन जाएगा। नाउ पुट f of t एंड f of s, so this implies L of t into sin at, function is sin at -1 dds of capital F of s is a upon s square plus a square, यहाँ से ले लो।
अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो -1 तो कांस्टेंट है, a को बाहर कर दो, -1 इंटू ए, अब 1/x के समान हो गया, तो उसका डेरिवेटिव -1/x², तो a² प्लस a का होल स्क्वायर। लेकिन ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेना होगा यूनिट फंक्शन का 2x। कंपोजिट रूल्स है, चेन रूल्स है। ठीक है, करो इसको, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया 2ax अपॉन x² प्लस a² का स्क्वायर। यस, यही चाहिए था। तो इस तरह से थ्योरम के साथ प्रॉब्लम अटैच होता है, कंबाइंड थ्योरी प्लस एग्जांपल। अभी हमने t पावर 1 का एक एग्जांपल देखा है, t पावर 2 का भी देखते हैं। लिख लीजिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, using above result, जो अभी हमने प्रूव किया, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² e पावर -at। t² इंटू एफ ऑफ टी के समान है ये, तो इसको एफ ऑफ टी डिनोट करते थे। सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e पावर -at, देन L of ft इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव e पावर -at का डेरिवेटिव 1 अपॉन, ऐसा लिख देते हैं, L of e पावर -at इज 1 अपॉन s प्लस a। इट इज कैपिटल f of s, दिस इज कैपिटल f of s, कैपिटल f of s। Now we know that Laplace transform of t power n f of t is equal to -1 का पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f of s। हमको t² f of t के लिए Laplace ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो इस केस, हमारे केस में n is equal to 2 है, तो therefore Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t² f of t is equal to -1 का स्क्वायर, पुट कर दो n की जगह 2, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f of s। रिजल्ट से ही जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले फुलफिल कर लेना, n की वैल्यू 2 पुट करके। अब यहाँ पर जो फंक्शन है f of t f of s वो पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज L of t² e पावर -at, -1 का स्क्वायर यानी +1 हो गया, d2/ds² ऑफ 1 अपॉन s प्लस a। अब एक साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग करो, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ddf ऑफ 1 अपॉन s प्लस a। यही पैटर्न, यदि थर्ड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम होता तो सेकंड ऑर्डर बाहर रखते थे, सिंगल ऑर्डर को पहले फाइंड करते थे, एक एक ऑर्डर पे डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव, ये ddf बाहर रखोगे, ddf ऑफ 1 अपॉन s प्लस a, 1 अपॉन x के समान है, -1 अपॉन x² हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन s प्लस a का स्क्वायर, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव s प्लस a का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इसमें से माइनस बाहर कर दो, -1 बाहर, ये हो गया ddS ऑफ 1 अपॉन s प्लस a का स्क्वायर। फिर से वही चेन रूल अप्लाई करते हैं, ddS ऑफ 1 अपॉन x के समान, ये -1 पहले से बाहर है, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं -1 अपॉन x का स्क्वायर, x हमारा है a प्लस s प्लस a का स्क्वायर, ये पहले से है, इसका स्क्वायर, ये x का काम कर रहा है, हाँ, से कैपिटल x का काम कर रहा है, तो -1 अपॉन x स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, यानी इसका डेरिवेटिव s से लेना होगा, तो 2 टाइम्स s प्लस a इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 1।
बाय चेन रूल्स। इसको ठीक करके लिख देते हैं अभी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक s प्लस है, यहाँ s प्लस a का पावर 4 है, तो एक कैंसर, तो रहेगा ये आंसर 2 अपॉन s प्लस a का क्यूब, 2 अपॉन s प्लस a का क्यूब। दिस इज आंसर फॉर Laplace transform of t square into e power minus 18। इसी तरह के और प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। आज इसी आर्टिकल के साथ यहाँ स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय गणित।